ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੁੱਪ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਗੋ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਰਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਵਨ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਮੀਨਸ ਕਿਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਂਡ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਟਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਟਮੈਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਸੋਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂਸ਼ਣ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਐਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਸਫਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੀਨਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਕਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
मतलब समझो कि अपना दादागिरी के हिसाब ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ Right. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पर जो आज के मंत्री महोदय कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अपने भी उनसे इसलिए दूर हो गए क्योंकि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बात करने का तरीका है, सलीका है, उसमें बहुत करूँगा है। ओके, तो एक और सर कि जो आप एक समाज को एक मैसेज दे रही हैं कि जो राजनीति के जो आज हालात हैं, जो 70 सालों से आप देख रहे हो, डिफरेंट वोट्स डाल रहे हो, तो अगर व्यापारी आदमी अगर इलेक्शन में आ गया है तो आम आदमी को वोट जो है किस ढंग से डालनी चाहिए? क्या वो ट्रेडिशनल पार्टीज को फॉलो करे, क्या ये व्यापारी संघ को फॉलो करे? क्योंकि आज अगर व्यापारी को उतरना पड़ा है इलेक्शन में, उसका कारण कुछ और नहीं, वो बहुत समर्थ आदमी है। राइट। वो धन से, दौलत से, सब चीज़ से समर्थ है। आज उसको क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब ये राजनीति इतनी इसमें हो चुका है कि जब आदमी सोचता कुछ और है कि मैं इसको क्यों जिता रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, राइट। लेकिन वो जब देखता है कि ये तो सब जो किया वो अपनों के लिए किया, जो अपने लिए किया, राइट, जो समाज के लिए किया वो 5% नहीं किया, ओके। और जो 95% किया वो अपने लिए किया। बिल्कुल। तो इसलिए हर आदमी आज की डेट में प्रॉब्लम समझता और एक और है सर, देखो जो व्यापारी है या बिजनेस कम्युनिटी है उनका डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो जो आप लोगों का जो डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्शन है, क्योंकि पब्लिक इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम बिजनेस की बात करें, विचारों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि सर आपके जो विचार है पब्लिक इस चीज़ को समझ पाएगी कि अभी चेंज चाहिए? पंजाब में, हिंदुस्तान में, हर जगह चेंज, एवरीबडी वांट्स चेंज। क्योंकि हम पंजाब में उस धरती पे रहते हैं जो गुरुओं की धरती थी। जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चारों बार दिए थे, किस लिए? सम्मान के लिए, राइट। अपने धर्म के लिए, राइट। और हम अगर आज भी डरते रहेंगे और सिर्फ किसी के भय के अंदर जिएंगे तो वो जीवन से अगर 100 साल जीना है तो उससे 1 साल जीना बेहतर समझना। अगर सम्मान की जिंदगी 1 साल की है, अपमान की जिंदगी 100 साल की है, उस 100 साल से 1 साल जीना मैं उसको बेहतर समझता। यानी आप का ये विचार है कि हर लोगों को अधिकार है वोट डालने का, हर लोग आगे आने चाहिए, जो अपने विचार हैं वो पब्लिक के सम्मुख शेयर करने चाहिए। बिल्कुल। आज अगर हम नहीं जागेंगे, अगर आज समाज, व्यापार, क्योंकि सारा लुधियाने को इन्होंने इतना दुखी किया व्यापारियों को, तो कि हर अंदर से व्यापारी दुखी है, प्रॉब्लम में है, लेकिन बोल नहीं रहा। ये जो बोलने का समय है वो अब आ चुका है। अगर अभी नहीं बोलेंगे, अगर अभी नहीं जागेंगे तो सोए आए हैं तो सोए ही चले जाएंगे, फिर आपका नाम किसी भी अक्षरों में लिखा नहीं जाएगा। एक और सवाल है सर, क्या जो पिछले ये लोग कह रहे हैं कि इतने सालों से डेवलपमेंट लुधियाना जो शहर है एक अपने आप में बहुत बड़ा एक आधार है, इंडस्ट्रियल हब है, हौजरी है, साइकिल इंडस्ट्री है, ऑटो पार्ट्स है, या और भी बहुत बड़े यहाँ पे एक ब्रांड है। अगर इंटरनेशनली बात करें, लुधियाना एड्रेस बुक में हम बात करें, गूगल में टॉप पे है। उस हिसाब से क्या लुधियाना में डेवलपमेंट हुई है सर? आप तो काफ़ी लोग डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं। अब आज हम मेरा मल्हार रोड पे अपना कॉम्प्लेक्स था, राइट, उसके आगे जो 120 फुट की सड़क थी उसको जैसे इन्होंने इतना छोटा कर दिया, राइट, कि किसी भी आदमी के अगर जो उस एरिया में रहता है या जाता है तो उससे अगर आप पूछेंगे, पहले तो लग गई, लेकिन उसको इतना कंजस्टेड कर दिया और इसको छोटा इतना कर दिया कि हर आदमी उसकी, बल्कि वो किया तो इन्होंने अपनी तरफ से डेवलपमेंट है, लेकिन वो डेवलपमेंट का रिजल्ट क्या है? एक और मेरा सवाल है सर, जो अभी हमारे जो संत सीचेवाल साहब हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं जी। एक जो बुड्ढा दरिया करके है, ठीक है, जो लोग हम सुना है 70s में यहाँ पे पानी एक पीने लायक था, लोग यानी यहाँ पे आके पानी पीते थे, नहाते थे, यानी पिकनिक की तरह एंजॉय करते हैं। आज वही चीज़ एक श्राप बन गया जी लुधियाना में, 14 किलोमीटर की जो बेल्ट। आप इस पे क्या अपने विचार रखते हैं सर? ये बुढ़ा
दरिया था। ओके सर। इतना साफ पानी था कि अगर एक में रुपए का सिक्का नीचे फेंक देता था तो नीचे से नजर आता था और लोग Very good. उसमें स्नान करते थे, ओ वेरी गुड। मेला लगता था। Very good. आज वो इतना दूषित और इतना गंदा हो गया कि आप अगर अगल बगल में रहते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर हमारी 70 सालों की डेवलपमेंट है तो इसको मैं डेवलपमेंट नहीं कहता, इसको विकास नहीं कहता, इसको मैं विनाश कहता। बिल्कुल, क्योंकि सर ये जो 14 किलोमीटर की बेल्ट है ये माछीवाड़े से शुरू होकर सिल्मा तक जाती है। इसमें तकरीबन अगर बात करें 14 विधायक और एक सांसद है। क्या उन लोगों ने सर कभी भी इस चीज़ की गौर नहीं किया? इन्होंने सिर्फ बातों से किया है, प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया। इतने फंड्स लिए 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए इसके लिए इन्होंने पास भी कराया, लेकिन उसका यूटिलाइज कहाँ हुआ ये या खुदा जानता है या ये मंत्री लोग जानते हैं। हम तो सिर्फ क्वेश्चन ही कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई करता है तो ये फिर उसके जरिए। ओके, तो क्या आपको लगता है कि जब ये नया कुछ रेवोल्यूशन आएगा, नए जैसे आपका व्यापारी संघ है, तो आपके जो लोग हैं जो चाहते हैं कि चेंज आएगा, तो वो भी इसी तरह ये वोट डालेंगे कि हाँ भी हमारा जो पहले का जो विधायक है या नया विधायक, वो क्यों डिफरेंस क्यों चुनेंगे वो वोट डालने के लिए नए नए? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? रीज़न तो हमें सब दिख ही रहे हैं कि हमने किया, लेकिन किया क्या? जो किया है वो सबको दिख रहा है, लेकिन जो करना है वो हमें, इनके पास रीज़न तो 70 साल से जो क्लियर नहीं हुआ वो अब भी हमें दिख ही रहा है कि जो 70 साल में इन्होंने, मैंने बताई है कि 5% लोगों को खुश किया है, 95% को नाराज किया है। जो 95% अब समय है जागने का। तो रोड्स जो है, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें लुधियाना में, किस तरह की डेवलपमेंट हुई है? जो डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर इनके अपने खास रहते हैं उस एरिया में तो टहले लगा देते हैं। हमारी गली में कृष्णा नगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर 0% भी 5 साल में काम नहीं हुआ। जहाँ हमारे इलाके में तो इसने जो साइड पे लोगों की तो बैल फैक्ट्री लगाई थी और उसमें इन्होंने लोगों को काफ़ी खुश किया। हमारे इलाके में वो टहले भी नहीं। मेरा एक और सवाल है सर, मतलब द्वेष भावना और गैर विरोध की भावना इनके अंदर आज भी। मेरा एक और सवाल है सर, आप लोग एक बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिजनेस मींस जो स्टेट को, देश को रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये जो अभी जो पार्टीज हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे या अलग अलग जो न्यूज़पेपर या देखते हैं कि ये लोग फ्री बीज बोलते हैं, ये फ्री की चीज़ें बांटनी कि हम उसको ये दे देंगे। हम क्या इस तरह की राजनीति हिंदुस्तान चाहता है जी? जो तो लोग समझ रखते हैं कि हम कर्म करके अपना खाएं जी, वो इसके बिल्कुल 100% विरोध है। जो ये मुफ्त वाला सामान किसी को अगर देते हैं, अगर शराब बनाने वालों ने पहले शराब फ्री बांटी थी, क्यों? नशा लगाने के लिए जी, वैसे ही ये लोग फ्री की आदत जब डाल देंगे तो लोग काम ही नहीं करेंगे, बिल्कुल। हड हराम हो जाएंगे। हड हराम आदमी क्या करता है? मुफ्त का खाना शुरू कर देता है। जिसको मुफ्त का देना शुरू, आज ये भिखारी क्यों बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि उसको मुफ्त का हमने देना शुरू कर दिया। ओके, तो वो काम ही नहीं करता था। हमें कर्म योगी बनाने हैं, वो कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। ओके, यानी लोगों को, यानी अगर हम 5, आपने बिल्कुल डिफरेंस बता दिया कि 5 और 95% है। 95% लोगों को जानना होगा कि हमें क्या मुफ्त की चीज़ चाहिए या कर्म योगी या कुछ ऐसे आधार बने चाहिए जिससे कि रोजगार पैदा हो। जो ये हमारे व्यापारी दुकानदार भाई आ रहे हैं, इनका लक्ष्य एक है कि हम कारोबार में, मतलब जो अपनी ये कहते हैं जिसको कि हम नौकरियां, यस, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, नौकरी, काम देंगे, काम देंगे, काम करना सिखाएंगे। राइट। अगर हम काम करेंगे नहीं तो देश कहाँ चला जाएगा? खड्डे में चला जाता है। तो ऐसा सब कुछ मुफ्त बांटने से क्या होगा? मुफ्त देने से तो खूह खाली हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो हमारे पास तो लोगों का दिया हुआ टैक्स का पैसा है। अगर हम इसको ऐसे लुटा देंगे तो ये दुनिया हमारी, अगर जो थोड़े दिन जो चलने वाली है उससे पहले लुट जाएगा। बिल्कुल। एक और असर देखिए, आज की डेट में जो जनसाधारण आदमी है, हम बात करते हैं आम जनसाधारण, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि अच्छा बच्चों को एजुकेशन,
अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ये आज तक मेरे को लगता नहीं पंजाब में कुछ ऐसा किसी भी अच्छे मीन्स किसी सरकार ने उपराला किया हो, या किया भी होगा तो प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट नहीं हुआ टाइमली। वो मीन्स जैसे पीछे अभी लोकल कारपोरेशन की सिटी बस सर्विस थी, बहुत अच्छी फ्लीट थी जी उनकी, बट उन्होंने पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने बंद कर दी थी। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंडेटरी है? ये हमारी मेन जल, वायु, ये हमारे, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते जी। प्लस जो हमारी सेहत, उसके लिए हॉस्पिटल चाहिए। राइट। अगर हॉस्पिटल बड़े आदमी के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, तो उसमें क्या होगा? उसमें हर आदमी पैसे वाले को पीछे दौड़ता है। Right. तो यहाँ पर हमने जो हमारा तरुण जैन बाबा जी का लक्ष्य है वो एक ही है। वो क्या है कि हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जिसमें कि एक अरबपति का बच्चा भी जो मिनिस्टर होगा, उसका बच्चा भी उसी स्कूल में बन जाने के लिए पाबंद होगा, और जो गरीब का जो 5,000 या 10,000 रुपये की नौकरी करता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। तो फिर ये ऐसा कुंडा उन्होंने अपने ऊपर मंत्रियों और लोगों के ऊपर रखेंगे, जिससे कि कोई भी आदमी जो आज ग्राफ नीचे गिर चुका है स्कूलों का, उसको कैसे अपने। वेरी एक और असल जो बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जितनी भी पार्टी जब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, जब भी कोई आदमी विधायक, सांसद या कुछ चेयरमैन बन जाता है किसी बोर्ड का, तो उसको इमीडिएटली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी जो मेजोरिटी ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल है, ठीक है जी, वो जो अधिकारी हैं वो सारे के सारे इन विधायकों की सिक्योरिटी में लग जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि जब नीचे जब डाउन लाइन में आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो प्रॉपर उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। क्या आप इस चीज़ के खिलाफ हैं? क्या इस चीज़ को वाकई जो आदमी विधायक बनता है उसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है जी? सिक्योरिटी आपको जब ईश्वर ने पैदा किया है, जितने श्वास लिखे हैं उतने ही वो पूरे करके जाएगा। उसके बिना वो कहना मस्सा डरिया मौत तो मौत आगे खड़ी। ओके। मगर हमें जो इतना मान शान के चक्कर में गाड़ियाँ, इतनी हमारे साथ सिक्योरिटी, वो क्यों है? हमारी अंदर की कमजोरियाँ हैं। जब हम अच्छे कर्म नहीं करते तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। जब हम नेक कर्म करते हैं, हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, तो हमें सिक्योरिटी तो इस ईश्वर की दी हुई है। हमें ईश्वर बचाने वाला है। इंसान से हमारा कोई भी हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर कर्म हमारा श्रेष्ठ होगा तो हम कभी भी किसी चीज़ का निर्वैर, जो गुरु ग्रंथ साहब में आता है जी जी। कि हम निर्वैर हैं। निर्भव तभी होता है आदमी जब किसी से वैर नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से वैर विरोध नहीं करता। जो वैर विरोध करेगा उसकी दुश्मन पैदा होगा। यानी आप कहते हैं कि जितनी भी ये सिक्योरिटीज, जितने भी ये वीआईपी कल्चर है, ये विड्रॉल होना चाहिए और वो सारा का सारा आम जन साधारण की बंदोबस्त और उनकी सुरक्षा के लिए मुहिम करानी चाहिए। यस, क्योंकि अगर हमने जो पब्लिक इतने तनख्वाह दे रहे हैं, हम जी, डीएसपी है, एसएसपी है, कमिश्नर है, जो पुलिस इतनी इनके सेवा में लग जाती है, उनको अपना काम करने दें और हम अपना काम करें, क्योंकि हम तो उनको क्या बना देते हैं। एक इतना पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ गवार आदमी कई बार मंत्री बन जाता है, जिसका विजन ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि सिर्फ वो क्या है कि कुछ लोगों को अपने वर्ग ला लेता है और लोग उसको वोटें डाल देते हैं, और उसका विजन और रीज़न वो बता भी नहीं पाता। पीछे हम गए थे जब पार्क प्लाजा में, तो इसमें हमें जो बताते मंत्री उठ के चले गए, तो या उनके क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे पाए, तो ये कोई मतलब सूझवाने की निशानी है। तो आप जन साधारण को देखो, आप बहुत बड़ी संस्था के प्रतिनिधित्व के रूप में भी जाने जाते हैं। जो ब्रह्म हमारी विश्वविद्यालय है बहुत बड़ा है। अब उस औरे में आकर बात पूछे बत्रा जी से, तो आप जन साधारण को इस इलेक्शन के मतलब क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज तो यही है कि सच्चा सुच्चा, साफ सुथरा, छवि वाला अगर इंसान को आप जिताते हैं
चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर गुणता चाहिए। अगर वो गुण को धारण नहीं किया, सिर्फ सुनाता है तो वो भी नकली है। जो असली इंसान है उसको पहचानो, समय पहचाने कि हमने क्या किया था, अब क्या करना है। अगर हम जाग जाएंगे तो देश ट्रैक पर चल पड़ेगी गाड़ी, अगर हम नहीं चलेंगे तो वो ट्रैक पे गाड़ी तो उतरी तो पड़ी है लेकिन कई खड्डे में। मेरा एक और सवाल है सर, अभी आपने गुण की बात की, अगर हमारे बच्चे किसी अच्छे विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज या कॉलेज में कहीं एडमिशन लेते हैं, उनके लिए पूछा जाता है कि आपके परसेंटेज कितने हैं, ठीक है जी, उसको फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। क्या जब ये इलेक्शंस होते हैं किसी भी तरह के, चाहे कॉरपोरेशन के हैं, सरपंच के हैं, विधायक के हैं, सांसद के हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सर? आपके समझ क्वालिफिकेशन, क्रेडेंशियल्स नहीं होना चाहिए मापदंड, ऐसा कुछ? बिल्कुल, अच्छे आदमी, अच्छी सोच, ये कुछ ज्यादा पढ़ने लिखने से नहीं होता। आपके अंदर वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कितनी? ओके, मोरल वैल्यूज क्या है? सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, नैतिकता, करुणता, उदारता। अगर ये 7 वैल्यूज आपके अंदर है तो आप पढ़े लिखे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके लिए पहले आदमी को खुद अपने आप को जानना पड़ेगा। अंदर का अपना, अंदर के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेगा। तो मैं आपसे विनती करूंगा थोड़ा सा और अच्छा, क्योंकि आपके पास खजाना है बहुत अच्छे अल्फाजों का, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अपने जो पोटेंशियल वोटर्स हैं लुधियाना से, पंजाब से, क्योंकि चेंज लुधियाना या पंजाब चेंज की तरफ जा रहा है, तो आप उनको क्या संदेश देते हैं? ये डर भय से निकल के वोट डालें। हाँ, क्योंकि हम उस गुरुओं की धरती के जन्मे हुए हैं जिसमें भगत सिंह, सुखदेव ने जन्म लिया, जिनके अंदर इतनी शक्ति थी। क्या थी? आई डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर हम करने पे आए तो क्या नहीं कर सकते? चेंज हो सकती है। यस, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। चेक करें, चेंज करें। अगर चेक करके चेंज करेंगे तो ये परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। परिवर्तन सृष्टि का भी नियम है, इंसान की सोच का भी नियम है। जिस दिन हम जाग जाएंगे तो ये दुनिया फिर से जो सोने की दुनिया होगी, खाने को छप्पन भोग, सुख अपार होंगे, देवताओं जैसे होंगे। जो देवताओं जैसे लोग थे वो आज क्या बन चुके हैं आप सब जानते हैं। अब उसके लिए कोई शब्दावली करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अंदर की जागृति, स्मृति को जगाना है, क्योंकि हमने ये 5 साल का जो हुआ है वो हमने सारा आपको उसका दिखा दिया कि हमें अब अपनी स्मृतियों को जगाना है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अगर हम अब नहीं जागेंगे तो दोबारा भी हमारा वही असर होने वाला है। इसलिए जागो, जागो, समय पहचानो। अगर समय अब नहीं तो कभी। सेल्फ रियलाइजेशन मैसेज, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो आपको सब कुछ आपके कदमों में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे और उम्दा विचार हैं बत्रा जी आपके। बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। आपकी जिस शख्सियत, जिस हिसाब से पर्सनैलिटी, वैसे ही आपके अल्फाज हैं। तो एक शब्दावली, मैं थोड़ा सा एक और सवाल लास्ट लूँगा आखिरी। शब्दावली जो है, आपको लगता है कि विचार, जो शब्द हैं, वो मतभेद पैदा कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े उम्दा नेता जो हैं वो ऐसी शब्दावली यूज़ कर रहे हैं कि उसको प्लेटफॉर्म, यानी आम जनसाधारण के लोग में नहीं वो बोलनी चाहिए, वो ओपन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या इस तरह से जो शब्दावली से मन को जीता जा सकता है? ये डर की राजनीति है? ये क्या चीज़ मैसेज दे रही है? जो भी शब्द है, जो आपके, एक है कि आप सिर्फ सुना सुनाया बोलते हैं, मुख से वही निकलता है जो आपके मन में होता है। कि जब मन के अंदर आपकी शुद्धि है तो आप शुद्ध अल्फाज कब निकलेंगे और अच्छे विचार तब होंगे जब आपकी स्मृति और मन शुद्ध होगा। स्मृति और मन को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अच्छे विचारों का उत्पत्ति करनी पड़ती है। जब वो अच्छे विचार आपके अंदर हैं जो मुख में, मन से वो निकलेंगे। एक होता है कि मैं मुख से सिर्फ पढ़ के बोलता हूँ, एक है कि मैं हृदय की बात बोलता हूँ। जब हृदय से बोलेंगे तो आदमी पर छाप लगती है और छाप ही आदमी को। बहुत ही उम्दा विचार हैं बत्रा जी, बहुत अच्छा लगा सर। और हम चाहते हैं कि अगर आप जैसे लोग सड़कों पे आगे हैं वोट मांगने के लिए, तो जनसाधारण को आगे आना ही पड़ेगा।
तो आप लोग मेंटर्स हैं, एक विजन है नए पंजाब की, नए हिंदुस्तान की। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय